میں نے سردار مہتاب سے بات کی ہے سردار. کیا کہتے ہیں سردار مہتاب؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ماں سے اس کا دودھ پیتا بچہ چھین لیا جائے. اور میرے نزدیک بہت بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ میدیوں کا بچہ سالاریوں کا دودھ پی رہا ہے. ہم اس کے بدلے آپ کو تاوان دے سکتے ہیں سردار. تاوان؟ بالاج کے بیٹے کا تاوان؟ اپنے پوتے اور وارث کا تاوان؟ میری آپ سے درخواست ہے سردار. آخری بار کہہ رہا ہوں گورام، میرا بچہ میرے حوالے کر دیا جائے، ورنہ 15 سال پرانا معاہدہ ختم اور سالاریوں کے لیے سمندر تک کے تمام راستے بند ہو جائیں گے. مگر سردار، اور میدی قبیلہ اپنے سردار کا وارث حاصل کرنے کے لیے سالاریوں پر حملہ بھی کر سکتا ہے. سردار ذکاء اللہ میدی کا یہ مطالبہ لاکھ ظالمانہ صحیح، لیکن اسے اپنے بیٹے کی بیوہ کو بطور بہو قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اسے اپنے پوتے کے حصول کے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے. میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا شاہ صاحب کہ میں کیا کروں. تم کچھ نہ کرو بیٹا، بس اتنی کوشش کرو کہ کسی طرح یہ معاملہ بڑے جرگے میں نہ جائے اور دونوں قبیلوں میں لڑائی بھی نہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ شاہتاج ہے شاہ صاحب، جسے اپنی دکھی زندگی میں پہلی بار خوشی نصیب ہوئی ہے. فیصلہ تو ہر حال میں شاہتاج کو کرنا ہے گورام. نہیں شاہ صاحب، میں کسی حالت اور کسی صورت میں بھی شاہتاج سے. میں کروں گا بات، میں پوچھوں گا شاہتاج سے. شمشاہ نے یہ تو کہہ دیا سردار کہ وہ شاہتاج سے بات کریں گے، مگر میں سوچتا ہوں کہ دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں جو کسی ماں سے اپنا بچہ قربان کر دینے کی بات کر سکے. شاہتاج کے ساتھ پہلے بہت ظلم ہو چکے ہیں گورام، اسے مزید کوئی صدمہ نہیں دیا جا سکتا. اگر سردار ذکاء اللہ میدی ہمارے سمندری راستے روک دے تو؟ کوئی بات نہیں گورام. اور اگر وہ لڑائی کرتا ہے تو؟ ہم بھی لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کی زبان سے یہی سننا چاہتا تھا. یہ بات تم ہر سالاری کی زبان سے سنو گے گورام. میں نے تمہارے اور دروشم کے سہارے بیوگی کا دشت عبور کیا ہے گورام. میں جانتی ہوں کہ شاہتاج بالاج کا غم تو بھلا سکتی ہے، لیکن بی برک کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی. آپ ٹھیک کہتی ہو ماں، جو مارا جائے اس کے کفنانے اور دفنانے کے بعد صبر آ جاتا ہے، لیکن جو گم ہو جائے یا چھین لیا جائے اس کا صبر کبھی نہیں آتا. ایک ماں کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے بیٹے کہ اس سے اس کی اولاد کو چھین لیا جائے، اور پھر شاہتاج کے پاس بی برک کے سوا ہے ہی کیا. خدا ہم سب پر اپنا رحم کرے. یہ نہیں ہو سکتا. ایسا تیمہ شاہتاج سن لے گی. یہ بیٹی ابھی تو پلایا تھا دائمہ. اور دودھ پلا کے بیٹی. کل تو آپ کہہ رہی تھی اتنی جلدی جلدی نہ پلایا کرو، مانگے تو پلاؤ، اب کہہ رہی ہوں اور پلاؤ. میں چاہتی ہوں کہ جو حسرت اس کی ماں کو ہے وہ اسے نہ رہے. اس کا مطلب ہے آپ مجھے رلا رلا کے پلایا کرتی تھی. نہیں بیٹی، میں تجھے دودھ تو بہت پلایا کرتی تھی، مگر میرے دودھ میں محبت کی مٹھاس تو تھی، ممتا کا نور نہیں تھا. اور قبیلے کی سردار کی رگوں میں ممتا کا نور ہونا چاہیے. کون سے قبیلے کا سردار؟ اپنے قبیلے کا، اپنے باپ کے قبیلے کا. یہ کسی قبیلے کا سردار نہیں ہے. بی برگ صرف اپنی ماں کا سردار ہے، اپنی ماں کے آنگن کا سردار، اپنی ماں کے دل کی حویلی کا سردار. یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے دائمہ؟ کون سی بات؟
ये कबीले वाली, बाप के कबीले के सरदार वाली। कोई खास बात नहीं, लाओ इसे मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। आप पहले मुझे बताएं बात क्या है। कोई बात नहीं बेटी। कुछ दिनों से इस हवेली में कुछ बातें जरूर हो रही हैं। कैसी बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे महसूस जरूर हो रहा है कि कोई ना कोई बात जरूर है जो मुझसे छुपाई जा रही है। तुमसे छुपाने वाली कोई बात नहीं बेटी। नहीं दाइमा, आपको पता है। मुझे कुछ पता नहीं। दाइमा, आपको मेरी कसम, मेरे रगों में आपके दूध की कसम। बताएं क्या बात है। तुम्हारी गोद में मेरी कबीले का वारिस है बेटी। नहीं, ये सिर्फ बालाज का बेटा है, मेरा बेटा है। इसका कबीला मेरी मोहब्बत का कबीला है। इसने सरदार जकाउल्ला के बाद अपने कबीले का सरदार बनना है। और अगर मैं इसे सरदार ना बनाना चाहूं तो? तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा शाहताज। ये तुम्हारे पास बालाज की, उसके बाप की, उसके कबीले की अमानत है, और उस कबीले का सरदार अपनी अमानत वापस नहीं। आप बताएं दाइमा, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? अगर आपसे कोई मुझे ही मांग लेता तो आप क्या जवाब देती? आपकी सब बातें दुरुस्त है फूफी जान, लेकिन क्या आप गौर आमिद रोशन किसी को दे सकती हैं? नहीं बेटी, कोई माँ अपने बच्चे की जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। गौराम, मैं तुम्हारी मुजरिम हो सकती हूँ, मगर मेरा बच्चा तुम्हारा मुजरिम नहीं है। तुम मेरे मुजरिम नहीं हो शाहताज, तुम किसी की भी मुजरिम नहीं हो। तुम्हारी ममता की हिफाजत मेरा ही नहीं, पूरे कबीले का फर्ज बनता है, और हम तुम्हें यह फर्ज निभा कर दिखाएंगे। नहीं शाहताज, मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दे सकता बेटा, सिर्फ सूरत हाल से आगाह कर सकता हूं जो मैंने कर दिया है। फैसला तुमने करना है, और तुम्हारा कबीला, मीर गोहराम और सरदार मेहताब तुम्हारे फैसले का पूरा पूरा एहतराम करने का ऐलान कर चुके हैं। आपके इल्म के खजाने में से जो चंद मोती मैं चुन सकी हूँ शाह साहब, और मीर बालाज की मोहब्बत में गुजारे हुए लम्हों ने जो कुछ भी मुझे दिया है, मेरा फैसला उसी की रोशनी में होगा। आप कल मीदियों के सरदार को यहाँ बुलवा लें। शमशाह की दावत कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं अबू। मैं उनके डेरे पे जरूर जाऊंगा और सबके सामने अपना हक मांगने की आखिरी कोशिश करूंगा, ताकि सलारी ये न कह सकें कि मैंने उन्हें आखिरी मौका नहीं दिया। जकाउल्ला मेदी
आ गया। सालारी की जानिब से कौन बात करेगा? सरदार महताब और मीर कोहराम। कोई एक आदमी बात करे तो अच्छा है शाह साहब। शाह साहब, शहताज बीबी आपकी इजाजत से सरदार ज़काउल्लाह मीदी से खुद बात करना चाहती हैं। इजाजत है। और बीबी, शाहताज का एहतराम हम सब लोगों पे वाजिब है। जलाल, पर्दे का इंतजाम करो। आप लोगों को मेरा इजाजत मांगना अजीब सा लगा होगा। ऐसा कभी हुआ नहीं। मगर ऐसा भी कब हुआ है कि किसी मां से उसका बच्चा मांगा गया हो। जानती हूं, बहनें भाइयों के सामने, बेटियां बुजुर्गों के सामने और औरतें मर्दों के सामने बात नहीं कर सकती। मगर मैं इस वक्त सरदार हमजा की बेटी, मीर बालाज की बेवा और सरदार ज़काउल्लाह की बहू नहीं, एक मां हूं और एक बाप से मुखातिब हूं। मैं वो मां हूं जिसे आज से पूरे 1 साल पहले मीदियों के सरदार अपनी बहू बनाने के लिए मेरे बाप के पास आए थे। अगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई होती तो आज मैं उस हवेली की इज्जत होती जिसने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया है। ये वही हवेली है जिसके वारिस की मैंने अपने बदन में अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत की है। क्या मेरा यही कसूर है कि मैंने अपने बाप के इनकार को इकरार में बदल दिया? क्या मेरा यही कसूर है कि अपने खावंद की ख्वाहिश के मुताबिक मैं कबीलों की पहुंच से बाहर नहीं गई? क्या मेरा यही कसूर है कि मैं मीर बालाज के साथ कत्ल नहीं हो सकी? क्या मेरा यही कसूर है कि जिन गोलियों ने मेरे खावंद के जिस्म को छन्नी किया वो मेरी कोख को जला ना सकी? क्या मेरा यही कसूर है कि मीर गौराम को बालाज का कातिल साबित करने वाले मुझे और मीर गौराम को हलाक ना कर सके? अगर ये सब कुछ होता तो आज मीदियों के सरदार अपना वारिस कहां से हासिल करते? मैं अगर चाहूं तो सरदार ज़काउल्लाह से ही पूछ सकती हूं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि वो अपने नाना की जगह अपने कबीले के सरदार बनाए गए थे? और क्या मेरा बेटा अपने नाना की जगह सरदार नहीं बन सकता? मगर मैं ये नहीं पूछूंगी, मैं ये चाहूंगी नहीं। मैं जानती हूं कि मेरे कबीले में सरदार बनने के लायक बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। मीदियों के सरदार को अपना नाम जिंदा रखने के लिए मेरे बच्चे की जरूरत है। अगर उनकी ये जरूरत पूरी ना की गई तो वह सालारी मच्छरों के लिए समंदर के रास्ते बंद कर देंगे, उनका रिज़्क छीन लेंगे, उन्हें भूखा मार देंगे, सालारियों की खून की नदियां बहा देंगे। अपनी हवेली का चिराग रोशन रखने के लिए पूरे कबीले का चिराग गुल कर देंगे। मैं शुक्रगुजार और एहसानमंद हूं अपने कबीले की कि उन्होंने मेरी गोद की हिफाजत के लिए
मीदियों के सरदार की धमकी की परवाह नहीं की और बेरोजगारी, भूख और जंग का मुकाबला करने का फैसला किया है। अपनी उस नाफरमान बेटी की ममता को बना दी है जो उनकी इज्जत, बाप की शफकत और बहुत सारी मोहब्बतों को कुर्बान करके एक दुश्मन कबीले के सरदार के बेटे के साथ चली गई। मेरी रगों में सालारियों का खून, मेरी रूह में शमशाह की तालीम, मेरे दिल में मीर पालाज की मोहब्बत और मेरी गोद में मीदियों का मुस्तकबिल है। और मुझे फैसला करना है कि अपने कबीले के लोगों का खून बहने दूं या अपनी गोद उजाड़ दूं, मछेरों का रिज्क छीन लूं या अपना आंगन वीरान कर दूं, इस पूरे इलाके को उजाड़ दूं या ममता का गला घोंट दूं। मां के लिए सबसे कीमती चीज उसकी औलाद होती है। वो किसी भी सूरत में अपनी औलाद को कुर्बान नहीं कर सकती। इस दुनिया की अदालत जो बच्चे को उसके बाप के नाम से जानती है, मुझसे मेरा बच्चा छीन सकती है, मगर सब जानते हैं कि आखिरी अदालत में बच्चा किसके नाम से पुकारा जाएगा। मैं अपने बच्चे के बाप का मुतालबा मंजूर नहीं करती। अपने बच्चे की माँ का एहतराम करती हूँ और ये माँ वो मिट्टी है जिस पर हम सब रहते हैं। मैं अगर अपनी गोद नहीं उजाड़ सकती तो अपनी इस माँ की गोद को भी उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं अपने बच्चे को आखिरी अदालत के फैसले तक उसके दादा के हवाले करती हूँ, मगर मेरी एक शर्त। और शर्त यह है कि सरदार ज़काउल्लाह एक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। ये मुआहदा मैंने लिखा है और चाहूंगी कि शमशाह सबको पढ़कर सुना दे। अपना वारिस वसूल करने से पहले मीदियों के सरदार इस पर दस्तखत करने के अलावा अंगूठे का निशान भी लगाएंगे। ये मुआहदा शमशाह के पास ही रहेगा। किसी और तनाज़े की सूरत में उनका फैसला आखिरी होगा। मैं सरदार ज़काउल्लाह मीदी हल्फिया इकरार करता हूं कि सालारी और मीदी कबीलों की बाहमी रजामंदी से ये मुआहिदा तय पाता है कि आज मोरखा 10 जून 1970 के बाद किसी सूरत और किसी हालत में भी एक दूसरे के समुद्री इलाकों तक पहुंचने के रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे। समंदर में भी एक दूसरे के कारोबार में रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। साहिलों के अलावा मंडियों तक आमद व रफ्त के दूसरे रास्ते भी खुले रहेंगे। ये मुआहिदा दोनों कबीलों के दरमियान हालत जंग में भी कायम रहेगा। इसके अलावा साहिली इलाकों में जो भी तरक्याती काम होगा, दोनों कबीले मुश्तरका और मुत्तफिक का फैसला करेंगे, जो दोनों कबीले के लोगों के कुदरती हुकूक और मफादात के हक में होगा।
शाह साहब ने इसका नाम बीबर्ग रखा है। मैं चाहती हूँ यही नाम इसकी पहचान रहे। इसे इतनी मोहब्बत दें कि बाप के अलावा माँ की भी कमी महसूस ना करे। मैं अक्सर सोचता था गोहराम कि जो कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी, क्या वो हजरत हाजरा भी दे सकती थी? शाहताज ने अभी अभी इस निहायत मुश्किल सवाल का जवाब दे दिया है। मुझे बालाज की मौत का बहुत दुख है शाह साहब। उसने तो सिर्फ मेरी जान बचाई थी। शाहताज ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर बहुत से लोगों की जान बचा ली है। जिनकी यादें जिंदा हों गोहराम, वो कभी नहीं मरते। और ममता सिर्फ अपने बच्चों तक महदूद नहीं होती।
आंसुओं को रोका तो अंदर से ढह जाऊंगी मेरी बेटी। आज खुलकर रो लो अपने बाप को, अपने बच्चे के बाप को, अपने बच्चे की जुदाई को, ताकि तुम्हारी भीगी हुई पलकें देखकर कोई ये न कह सके कि शाहताज को अपने फैसले का पछतावा। ये कहाँ से लाए हो? सरदार ज़काउल्लाह की हवेली में बांटी जा रही है, एक माँ से उसका बच्चा छीनने की खुशी में। ना ना, मैं किसी माँ का कलेजा नहीं खा सकती। सकीना, हम अपने बच्चे को इस अंधेरे में नहीं रखेंगे, उसे पढ़ाएंगे, उसको तालीम दिलाएंगे। एक बच्चे के पढ़ लेने से क्या होगा? चिराग से चिराग जलता है। ये अपना चिराग कहाँ है? अंदर सो रहा है। ये हर वक्त सोता ही रहता है। भाई कादिर बख्श का कुछ पता चला? मामला सालारी कबीले के सरदार के चुनाव का है। मैं कायम मकाम सरदार की हैसियत में सबसे पहले अपना हक इस्तेमाल करते हुए सालारी कबीले की सरदारी के लिए शाहताज का नाम पेश करता हूँ। लेकिन मैं अमीर कराम, इससे पहले कि मेरा नाम लिया जाए, मैं सरदार मेहताब की तजवीज की तायीद करता हूँ। शाहताज को सरदार बनाना सरदार हमजा मरहूम की ख्वाहिश भी थी और वो इस मनसब के लायक भी है। मगर वो खातून है गोहराम। अंग्रेज जनरल डायर के दौर में गुल बीबी ने न सिर्फ अपने कबीले की सरदारी की, बल्कि फरंगी हुक्मरानों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ने वाले महाज की सरबराह भी रही। हमारी तारीख में और भी बहुत सी औरतों ने सरदारी के फराइज सर अंजाम दिए। शाहताज न सिर्फ अक्लमंद, बहादुर और जुर्रतमंद है, बल्कि वो अपने कबीले के मुफाद को भी मुकद्दम समझती है। जो औरत अपने कबीले के वकार और लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकती है, उससे ज्यादा सरदारी का हकदार और कौन हो सकता है। गोहराम के दस्तबरदार हो जाने के बाद अब शाहताज के अलावा और कोई नाम रह ही नहीं जाता है। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने कबीले और कबीले की सरदार से वफादारी की हर आजमाइश पर पूरा उतरूंगा। शाहताज पे इतराज हो सकता है, वो एक दुश्मन कबीले की। इस इल्जाम से बड़ा जरगा उसे बरी कर चुका है। तो ये तय हो गया कि शाहताज को सरदार बनाया जाए और मीर गोहराम
शाहताज को सरदारी की तमाम शराइत से आगाह कर देंगे। आप फिक्र न करें सेठ साहब, जब तक दोनों कबीले आपस में उलझे हुए हैं आपको ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ने में कोई रुकावट नहीं हो सकती। बड़ी बड़ी मेहरबानी सरदार। ये ले आपका हिस्सा। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या खबर ला? खबर तो अच्छी नहीं है सरदार। तुमसे तो कभी अच्छी खबर की उम्मीद भी नहीं हो सकती। बको, क्या खबर है? सालारी और मेदियों में कोई मुआहदा हुआ है सरदार। क्या मुआहदा हुआ? पता नहीं सरदार, कोई मुआहदा लिख कर हुआ। जो मुआहदे लिखकर किए जाते हैं उन पर अमल नहीं होता। शायद इधर आओ। तुम्हें सरदार बनना ऐसा लगेगा? मुझे सरदार बनना कैसा लगेगा? सरदार बनने पर मुझे एक किस्सा याद आया। छोड़ो, मेरे सुनाए हुए पुराने किस्से बोल रहे हो, नए किस्से बोलो। सरदार बनने के 3 माह के अंदर अंदर शाहताज को शादी करना होगी। किसी भी अच्छे खानदान का लड़का उसे रिश्ता भिजवा सकता है। उनमें से चुना उसका अपना फैसला होगा। क्या शाहताज को ये शर्त मालूम है? हो सकता है मालूम हो माँ जी। परसों जिरगे के लोग मिलेंगे उससे। गौराम, शाहताज से अगर तुम... नहीं माँ जी, मैं अब शादी नहीं करूंगा। और अगर शाहताज भी यही कह दे तो फिर? तो फिर वो सरदार नहीं रहेगी। इस तरह सरदारी हमारे खानदान से चली जाएगी। जिरगा शाहताज को मजबूर कर सकता है। जिरगा सरदारी कबूल करने के लिए मजबूर कर सकता है, शादी करने के लिए नहीं। मुझे यकीन है शाहताज कोई गलत फैसला नहीं करेगी, और मैं भी दूसरी बार कोई गलत फैसला नहीं करना चाहता। ये कैसे हो सकता है शाह जी कि आप बुलाएं और मैं ना आऊं? वक्त तुम्हारा मुसलसल इम्तिहान ले रहा है शाहताज बेटा, और इम्तिहान की एक और घड़ी आ पहुंची है। एक और इम्तिहान? तुम्हारे कबीले ने अपना एक सरदार चुन लिया है। कौन? शाहताज। शाहताज? ये कैसे हो सकता है? ये सरदार हमजा मरहूम और मेरी ख्वाहिश तो थी ही बेटा। अब ये तुम्हारे कबीले सरदार मेहताब और गोहराम की ख्वाहिश भी बन गई। मगर ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। सरदार ही वो होता है बेटा जिसकी अपनी कोई ख्वाहिश ना हो। मैं इस काबिल नहीं हूँ शाह जी, मैं ये नहीं कर सकती। क्या तुम जानती थी कि तुम बालाज से प्यार कर सकती हो? अपने कबीले के मफाद पे अपना बेटा कुर्बान कर सकती हो? सरदार मीदी से किसी ऐसे मुआहदे पे दस्तखत करा सकती हो जो इस पूरे इलाके के हक में है? कल जिरगा तुम्हारे पास तुम्हारा फैसला सुनने के लिए आ रहा है बेटा। कोई भी फैसला करने और सुनाने से पहले मेरी चंद बातें याद रखना। जी।
عقل دماغ تک، علم کتاب تک، جذبہ دل تک اور خوشبو پھول تک محدود نہیں ہوتی۔ دولت کچھ نہیں ہے، اصل چیز دولت کا صحیح استعمال ہے۔ طاقت کچھ نہیں ہے، اصل چیز طاقت کا صحیح استعمال ہے۔ اختیار بھی کچھ نہیں ہے، اصل چیز اختیار کا صحیح استعمال ہے۔ اور میرے بچے، سردار وہ ہوتا ہے جو اختیار کے لیے طاقت اور طاقت کے لیے دولت استعمال نہ کرے، اور یہ تم جانتے ہو۔ جی شاہ جی۔ مگر ایک بات تم نہیں جانتے۔ وہ کیا شاہ صاحب؟ وہ یہ کہ محبت سنبھال کے رکھنے کے لیے نہیں، بانٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جرگے کی شرائط کے مطابق سردار بننے کے 3 ماہ بعد تک تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ شادی؟ ابھی نہیں، تم گھر جاؤ، میری باتوں کو سوچو، ان پہ ٹھنڈے دل سے غور کرو، پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کسی اور مرد کو بالاج کی جگہ نہیں دے سکتے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری محبت کا دامن تنگ نہیں ہے۔ تمہیں بیٹا صرف بیبرگ ہی کی نہیں، پورے قبیلے کی ماں بننا ہے، اس پورے علاقے کی، تمام قبیلوں کی ماں بننا ہے۔ کل میدی قبیلے کا سردار بھی تمہارا اپنا بیٹا ہوگا، اور بیٹے کو ماں کی ضرورت پنگھوڑے سے جنازے تک ہوتی ہے۔